بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھول سے ننھے منھے بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی، وحدائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر، اس جہانی رنگبو کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری عزت و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے رب کائنات نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر بھیجا. درود ہو، سلام ہو اس کے تمام تر نبیوں پر، بالخصوص نبیوں کے سردار امام کائنات، نبی آخر الزماں، سید البشر، ہادی بشر، ساقی کوثر، محمد بن عبداللہ، احمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، انسانی زندگی ہمیشہ یکساں اور ایک جیسی نہیں رہتی. انسان کی زندگی کے اندر اتار اور چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. انسان کی زندگی کے اندر کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی راحت تو کبھی مصیبت رہتی ہے. انسان کی زندگی ریل گاڑی کی پٹری کی طرح صرف سیدھے نہیں چلتی، بلکہ انسان کی زندگی کے اندر اتار اور چڑھاؤ بھی آتے ہیں. جس طرح سے باغوں میں ہمیشہ ہریالی نہیں رہتی، اسی طرح سے انسان کی زندگی میں ہمیشہ خوشی نہیں رہتی. جس طرح باغوں میں خزاں کا موسم آتا ہے، پتجھڑ کا موسم آتا ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی میں بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت بھی آتے ہیں. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اس دنیا کے اندر 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزارے اور اس کی زندگی کے اندر مصیبت نہ آئے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں
जहाँ पहुंचकर इंसान ये दावा कर सके, इंसान ये चैलेंज कर सके कि यहाँ पर कोई मुसीबत नहीं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर कोई दुख नहीं है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं। और ये बात भी याद रखिएगा, इंसान के ऊपर जो भी मुसीबत आए, जो भी परेशानी आए, एक न एक दिन वो मुसीबत, एक न एक दिन वो परेशानी जरूर खत्म होकर रहेगी। चाहे उस परेशानी का वक्त चाहे जितना लंबा हो जाए, लेकिन एक न एक दिन वो परेशानी जरूर खत्म होगी। रात चाहे जितनी लंबी हो जाए, एक दिन सुबह जरूर होगी। इसी तरह मुसीबत का वक्त जो है चाहे जितना लंबा हो जाए, एक दिन जरूर वो खत्म होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, कि तंगी के साथ आसानी है, बेशक मुसीबत के साथ आसानी है। तंगी के साथ आसानी है, मुसीबत आई है, परेशानी आई है, ये मुसीबत ये परेशानी एक दिन जरूर खत्म होगी। हज़रात, तो मैं ये कह रहा था, इंसान की जिंदगी के अंदर दुख और मुसीबत जरूर आते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है, इन दुखों का इलाज क्या है? तो आज के खुतबा जुमा के अंदर इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि दुखों का इलाज क्या है। इंसान के ऊपर जब मुसीबत आए, परेशानी आए, इंसान को दुख पहुँचे, तो सबसे पहले इंसान को चाहिए कि इंसान सब्र करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। किससे आजमाएंगे? मिनल खौफि, खौफ के जरिए से हम तुम्हें आजमाएंगे, वल जू, भूख के जरिए से हम तुम्हें आजमाएंगे, व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात, मालों के अंदर कमी कर हम तुम्हें आजमाएंगे, जानों के अंदर कमी कर हम तुम्हें आजमाएंगे, पैदावार के अंदर कमी कर हम तुम्हें आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन सब्र करने वालों को बशारत दे दो, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है, जिन्हें जब कोई परेशानी पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए है, इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के लिए है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। और सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इस्बिरु वसाबिरु वराबितु, तुम सब्र करो, वसाबिरु, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, वराबितु, और दुश्मनों के बिलमुकाबिल डट कर खड़े हो जाओ, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और सूरह दहर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और उनके सब्र का बदला ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत देगा और उनको रेशमी लिबास देगा। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आए, इंसान के ऊपर परेशानी आए, इंसान के ऊपर दुख आए, तो इंसान को चाहिए कि वो सब्र करे। अगर इंसान सब्र करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मुसीबत को दूर कर देगा और उसको बेहतरीन बदला अता करेगा। यकीन ना हो तो उठाइए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारा माल दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारी औलादें दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माल को छीन लिया, उनका माल खत्म हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी औलादें छीनी, उनकी औलाद खत्म हो गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया जिसकी वजह से उनका पूरा जिस्म मुतासिर हो गया। सिर्फ जिस्म का कुछ ही ऐसा था जिससे वो बीमारी जो बीमारी से महफूज थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं, परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं, तो घर वाले छोड़कर चले जाते हैं, खानदान वाले छोड़कर चले जाते हैं, परिवार वाले छोड़कर चले जाते हैं, सब लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ उनकी एक बीवी उनके साथ रहती है, जो उनकी देख रेख करती है, जो उनको खाना वगैरह देती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीमारी में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 18 साल तक उलमा ने लिखा है कि 18 साल तक अपनी बीमारी के अंदर मुब्तला रहते हैं। 18 साल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जज़ा फज़ा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल
रब्बुल आलमीन से जब 18 साल हो जाता है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब, अन्नी मस्सनी अज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन, ऐ मेरे रब मुझे मुसीबत पहुंची है, मुझे परेशानी पहुंची है, ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है, व अंता अरहमुर राहिमीन, जबकि तू अरहमुर राहिमीन है, तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, ए अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करता है और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि अय्यूब जहाँ पर तू खड़ा है वहाँ पर पाँव मार। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वहाँ पर पाँव मारते हैं, वहाँ से एक चश्मा फूटता है, एक चश्मा निकलता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस चश्मे के पानी से नहाते हैं और उस चश्मे के पानी को पीते हैं, उसके बाद वो अपनी बीमारी से शिफायाब हो जाते हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले से ज्यादा माल देता है, पहले से ज्यादा औलाद देता है। तो कहने का मकसद ये है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो सब्र करते हैं। सब्र की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बेहतरीन बदला अता करता है। लेकिन आज हमारे यहाँ हालत क्या है? आज हालत ये है कि हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम आमिलों के पास दौड़ने लगते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आती है, हम फुकवाने वालों के पास दौड़ने लगते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आती है, हम ओझाओं के पास दौड़ने लगते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आती है, हम तावीज़ और गंडों के पीछे भागने लगते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीमारी में 18 साल तक मुब्तला रहे और उसमें उन्होंने जज़ा फज़ा नहीं की, बेसब्री का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया। लेकिन आज हमारी हालत ये है, थोड़ी सी मुसीबत आती है, हम रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमारी ही ऊपर सिर्फ मुसीबत क्यों आ रही है, हमारी ऊपर सिर्फ परेशानी क्यों आ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया था कि इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, इंसान बड़ा ही नासब्रा पैदा किया गया है कि इंसान को जब कोई नेमत मिलती है, इंसान को जब माल मिलता है तो वह अपने माल को अलमारी में सहेज कर रखता है, अलमारी में जमा कर रखता है। व इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, और इंसान को जब परेशानी लायक होती है, इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो जज़ा फज़ा करने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। हज़रात, तो दुखों का पहला इलाज ये है कि इंसान सब्र करे। इसी तरह से दुखों का दूसरा इलाज क्या है? दुखों का दूसरा इलाज ये है कि इंसान नमाज के जरिए अपने दुख का इलाज करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाम, क्या ईमान वालो तुम नमाज के जरिए से, सब्र के जरिए से मदद चाहो, तुम नमाज के जरिए से और नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से मदद चाहो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले सब्र का जिक्र किया, फिर उसके बाद नमाज का जिक्र किया है। तो पता ये चला कि अगर हमें मुसीबत और परेशानी लायक हो तो हमें चाहिए कि हम पहले सब्र करें और उसके बाद नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करें। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कोई मुसीबत आती थी, परेशानी आती थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हो जाते थे। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत आए, जब कोई परेशानी आए, तो हमें चाहिए कि हम नमाज के जरिए से अपने दुख का, अपने परेशानी का इलाज करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी परेशानियों को, हमारे मुसीबत को दूर कर देगा अगर हम नमाज के जरिए से अपनी दुखों का और अपने परेशानियों का इलाज करेंगे। यकीन ना हो तो उठाइए बुखारी की हदीस, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर दूसरे मुल्क के जाते हैं तो रास्ते में एक जालिम बादशाह मिलता है। वो जालिम बादशाह अपने एक कासिद को भेजता है कि जाओ इब्राहिम से पूछो कि ये इब्राहिम की कौन लगती है। वो कासिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचता है और उनसे पूछता है ये तुम्हारी कौन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उख्ती, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। और हजरत सारा अलैहिस्सलाम से भी कहते हैं कि अगर ये लोग तुमसे पूछे ये तुम्हारी कौन है, ये तुम्हारा कौन है, तो तुम उनसे कह देना कि मैं उनकी बहन लगती हूँ, इसलिए कि रोए जमीन पर इस वक्त मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और ईमान वाला नहीं है, इसलिए तुम मेरी दीनी बहन हो।
चुनाचे वो कासिद हजरत सारा अलैहिस्सलाम को जबरन उस बादशाह के पास लेकर जाता है और वो बादशाह हजरत इब्राहिम और वो बादशाह हजरत सारा अलैहिस्सलाम से बुराई करने का इरादा करता है। तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़ी हो जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से नमाज में दुआ करती है, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिक, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाई, व भी रसूल तेरे रसूल के ऊपर ईमान लाई, व हसनतु फर्जी और मैंने अपनी इज्जत को महफूज रखा, फला तुसल्लित ऐ अल्लाह अलैया हादल काफिर, ऐ अल्लाह तू मेरे ऊपर इस काफिर को मुसल्लत ना करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ये दुआ करती है, फकुत्ता हत्ता रकदा बिरिजलिही, वो बादशाह जमीन के ऊपर गिर जाता है, अपने पाँव को रगड़ने लगता है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जब ये देखती है कि वो अपने पाँव को रगड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए, युकाल हिया कतलत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करती है, ए अल्लाह अगर ये मर गया तो दुनिया ये कहेगी कि इसी औरत ने इसको कत्ल किया है, इसी सारा ने इसको कत्ल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर दुआ करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सही कर देता है। जब वो जालिम बादशाह सही हो जाता है तो फिर दोबारा बुराई का इरादा करता है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम फिर नमाज में खड़ी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर दुआ करती है, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिरसूलिक, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाई, व भी रसूलिक और तेरे रसूल के ऊपर ईमान लाई, व हसनतु फर्जी और मैंने अपनी इज्जत को बचाए रखा, फला तुसल्लित अलैया हादल काफिर, ऐ अल्लाह तो इस काफिर को मेरे ऊपर मुसल्लत ना करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करता है। फकुत्ता हत्ता रकदा बिरिजलिही, वो आदमी जमीन पर गिरता है, अपने पाँव को रगड़ने लगता है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम फिर देखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए, युकाल हिया कतलत हो, अगर ये मर गया तो दुनिया ये कहेगी कि किसी औरत ने उसको कत्ल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर दुआ करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसको सही कर देता है। 3 मरतबा इसी तरह से होता है। जब तीनों मरतबा वो जालिम बादशाह अपने मकसद में नाकाम होता है तो कहता है कि ये कोई इंसान नहीं, कहता है कि ये औरत कोई इंसान नहीं है, ये औरत कोई इंसान नहीं है बल्कि ये जिन्नी है, तुम लोग मेरे पास किसी जिन्नी को लेकर आए हो। उसके बाद वो बादशाह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करता है और अपनी एक बांदी रहता है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे बाद में निकाह कर लेते हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को जब मुसीबत और परेशानी लायक होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है। लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है, जिन्हें जब कोई परेशानी पहुंचती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और को पुकारते हैं। कोई अपने पीर को पुकारता है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारता है, कोई अजमेर वाले को पुकारता है, तो कोई किसी और को पुकारता है। लेकिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग गैरुल्लाह को पुकारते हैं। हज़रात तो लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे ऊपर मुसीबत आए, परेशानी आए तो हमें चाहिए कि हम नमाज के जरिए से अपने दुखों का इलाज करें। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए तो आपको चाहिए कि आप वुजू करें, आपको चाहिए कि आप वुजू करें। वुजू करने के बाद रब की बारगाह में खड़े हो जाए और रब की बारगाह में खड़े होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े और अपने दुख को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दुख को, आपकी मुसीबत को खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। हज़रात आगे चलते हैं। दुखों का तीसरा इलाज क्या है? दुखों का तीसरा इलाज ये है कि इंसान कसरत से दरूद पढ़े, इंसान कसरत से दरूद पढ़े। तिरमिज़ी की हदीस है जिसे इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने हसन करार दिया है। उबई बिन काब कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब से दरूद की फजीलत सुनी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके ऊपर कसरत से दरूद पढ़ूं। फकम अजलु लका मिन सलाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कितना दरूद आपके ऊपर पढ़ूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ सीता, जितना तू चाहे उतना दरूद पढ़। तो सहाबे रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वक्त का 1/4 हिस्सा दरूद पढ़ने में लगाऊंगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं, माँ सीता,
जो तू चाहे, वइन जिद्दा फहुवा खैरुल लक, अगर तू ज्यादा दरूद पढ़ेगा तो ये तेरे लिए बेहतर होगा। वो साहबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वक्त का आधा हिस्सा दरूद पढ़ने में लगाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा सीता, जितना तू चाहे, फइन जिद्दा फहुवा खैरुल लक, अगर तू ज्यादा दरूद पढ़ेगा तो ये तेरे लिए बेहतर होगा। तो वो साहबी रसूल कहते हैं, अजअलु लका मिन सलाति कुल्लहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके ऊपर हर वक्त दरूद पढ़ता रहूंगा, मैं आपके ऊपर हर वक्त दरूद पढ़ता रहूंगा, कसरत से दरूद पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो साहबी रसूल कहते हैं कि मैं हर वक्त आपके ऊपर दरूद पढ़ूंगा, कसरत से दरूद पढ़ूंगा, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, ईदन तब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुकफा हम्मुका, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे मुसीबत को, तुम्हारे गम को, तुम्हारे दुख को खत्म कर देगा, वयुगफर ज़म्बुका, और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि इंसान जब कसरत से दरूद पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दुख को, उसकी मुसीबत को खत्म कर देगा। तो सवाल यहाँ पर ये है, कौन सा इंसान दरूद पढ़े? इंसान कौन सी दरूद पढ़े? क्या इंसान वो वाली दरूद पढ़े जो हमारे भाई लोग अपने माइकों से पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, क्या हम ये वाली दरूद पढ़ें? मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी दरूद सबसे अफजल दरूद है, कौन सी दरूद सबसे बेहतरीन दरूद है, आप मुझे बताइए। तो सबसे बेहतरीन और सबसे फजीलत वाली दरूद अगर कोई है तो वो दरूद इब्राहिमी है, जिसे हम और आप लोग नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये वाली दरूद। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस दरूद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हज़रात आगे चलते हैं। दुखों का चौथा इलाज क्या है? दुखों का चौथा इलाज ये है कि इंसान कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। इंसान के ऊपर बसा औकात जो मुसीबत आती है, जो परेशानी आती है, तो बसा औकात इंसान के गुनाहों की वजह से इंसान के ऊपर मुसीबत और परेशानी आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर, कि तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आती है, वो परेशानी आती है, वो तुम्हारे हाथों के करतूत की वजह से आती है, वो तुम्हारे कारनामों की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है। तो इंसान को चाहिए कि इंसान के ऊपर जब मुसीबत और परेशानी आए तो इंसान को चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार करे। इस्तिग़फ़ार अगर इंसान करेगा तो मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूह के अंदर इस्तिग़फ़ार का फायदा बतलाता है कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, तुम लोग अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो फायदा क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नाज़िल करेगा। व यजअल लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नाज़िल करेगा और तुम्हारे औलाद के जरिए से, माल के जरिए से तुम्हारी मदद करेगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा, बागों को बनाएगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। इमाम बसरी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि इमाम बसरी, बारिश नहीं हो रही है, इमाम साहब बारिश नहीं हो रही है, कोई वजह बतलाइए। तो एक दूसरा शख्स आता है और वो शिकायत करता है कि इमाम साहब मेरी कोई औलाद नहीं है। इमाम साहब कहते हैं कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। एक और शख्स आता है, वो कहता है कि इमाम साहब पैदावार में बहुत कमी है। तो इमाम बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार करो। चार शख्स इमाम बसरी रहमतुल्लाह के पास आते हैं, चारों शख्स अलग अलग शिकायतें लेकर आते हैं, अलग अलग मामले को लेकर आते हैं। इमाम बसरी रहमतुल्लाह सबको एक ही इलाज बतलाते हैं और कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार करो। वहाँ जो लोग खड़े रहते हैं उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि इमाम साहब आपके पास लोग अलग अलग मुसीबत लेकर आ रहे हैं, अलग अलग शिकायतें लेकर आए हैं और आप सबको एक ही इलाज बतला रहे हैं। तो इमाम बसरी रहमतुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत को पढ़ते हैं, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इसी तरह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा बारिश तलब करने के लिए बाहर निकलते हैं और अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कर वापस आ जाते हैं, लौट जाते हैं। लोग उनसे सवाल करते हैं, लोग उनसे पूछते हैं
आप तो बारिश मांगने के लिए गए थे, आप तो बारिश तलब करने के लिए गए थे, आपने बारिश का जिक्र एक मर्तबा भी नहीं किया, बल्कि आप इस्तग़फ़ार कर कर वापस चले आए। तो इमाम तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने वो तरीका अपनाया है कि जिसकी वजह से बारिश होगी। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नाज़िल करेगा। फिलहाल हमें चाहिए कि हम मुसीबत और परेशानी के वक्त अपने गुनाहों से तौबा करें। हज़रात, इसी तरह से दुख और मुसीबत या परेशानी के वक्त पांचवा इलाज ये है कि इंसान मसनून दुआओं का एहतमाम करे। इंसान मसनून और मासूर दुआओं का एहतमाम करे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरे शोहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने मुझे एक दुआ सिखलाई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिनहा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरे शोहर का इंतकाल हो गया तो मैं इस दुआ को कसरत से पढ़ा करती थी और वो बयान करती है कि मुझे एक गुमान था कि मुझे मेरे शोहर अबू सलमा से बेहतर कोई और शोहर नहीं मिलेगा, क्योंकि अबू सलमा ये अपने फैमिली वालों के साथ अच्छा सलूक करते थे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते हैं और मुझे निकाह का पैगाम देते हैं। तो मैं कहती हूँ, अल्लाह के रसूल, मैं उम्र रसीदा हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत गुस्से वाली औरत हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहाँ तक बात रही तेरे उम्र की तो मैं भी उम्र रसीदा हूँ, और जहाँ तक बात रही तेरे बच्चे की तो तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं, और जहाँ तक बात रही तेरे गुस्से की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी फितरत को बदल देगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह कर लेते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब मैं ये गुमान करती थी कि मुझे मेरे शोहर से बेहतर कोई और शोहर नहीं मिलेगा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हो गया तो मैं समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर शोहर कोई और नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मे सलमा को उनके शोहर से बेहतर शोहर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता किया। क्योंकि दुआ की वजह से। वो दुआ कौन सी पढ़ती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, ऐ अल्लाह तू मुझे मुसीबत में अज्र अता फरमा, वख्लुफनी खैरम मिनहा, और मुझे इस नेमत से बेहतरीन नेमत अता फरमा। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि इंसान मुसीबत और दुख के वक्त इस दुआ का एहतमाम करे। इसी तरह से इंसान को चाहिए कि दुख और मुसीबत के वक्त ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ का भी एहतमाम करे। अगर इंसान मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त, दुख के वक्त ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुसीबत से बचा लेगा, उसके परेशानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर कर देगा। यकीन ना हो तो उठाइए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े को। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और उनकी कौम ने तौहीद की दावत को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर अपने बस्ती को छोड़कर दूसरे बस्ती की तरफ चले जाते हैं। और जब कश्ती में सवार होते हैं तो कश्ती जब बीच में पहुंचती है तो कश्ती हिचको लगाने लगती है, डगमगाने लगती है। तो लोग कहते हैं इस कश्ती में कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा है जो जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज है। चुनांचे कुरानंदाजी की जाती है, एक मर्तबा कुरानंदाजी की जाती है, दूसरी मर्तबा कुरानंदाजी की जाती है, तीसरी मर्तबा कुरानंदाजी की जाती है, तीनों मर्तबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। उसके बाद कश्ती वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर दरिया के अंदर फेंक देते हैं और इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली निकल जाती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब मछली के पेट में है, अंधेरे में है, समुन्दर के अंधेरे में है, समुन्दर की गहराई में है। उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, सुब्हानका तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़
ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब ये दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मुसीबत से निजात दे देता है। उस मुसीबत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बचा लेता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त हम इस दुआ का एहतमाम करें। इस दुआ के ताल्लुक से यानी सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ के ताल्लुक से औरतों के यहाँ ये बात मशहूर है कि ये दुआ बहुत गर्म है, इसलिए इस दुआ को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई शख्स इस दुआ को पढ़ेगा तो चेहरे पर दाना निकल आएगा, पिंपल निकल आएगा। औरतों में ये बहुत ज्यादा मशहूर है, तो ऐसी बात कुरान और हदीस के अंदर कोई नहीं। हज़रात आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कोई मुसीबत आती थी, परेशानी आती थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़ते थे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कोई मुसीबत आती थी, परेशानी आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तागीस। तो इंसान को चाहिए कि मुसीबत और परेशानी के वक्त इस दुआ का एहतमाम करे। इसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ी थी? उस वक्त उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त इस दुआ का भी एहतमाम करें। हज़रात इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, या इलाही तू हमारे दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को दूर कर दे। या इलाही जो हमें से बीमार हैं तू उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। आमीन। या इलाही हम मंदी के शिकार हैं, तू हमारे कारोबार में तेजी अता कर दे। आमीन। या इलाही तू हमारे कारोबार में तरक्की अता फरमा। आमीन। जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हमारा खात्मा कल्मे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन।